Okay, so in gynecology, as I said, this is the branch of science which is dealing with female organs and this is conditions associated with it. Now we'll discuss about female reproductive system. ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो इस पर से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो यूट्रस हो, चाहे वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया हो, चाहे वो इंटरनल जेनाइटल्स हो, कोई भी पार्ट पर से एक ना एक क्वेश्चन ये वाले सिस्टम से आता है. ओके, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर स्कोरिंग मार्क्स इन गायनेकोलॉजी. ओके, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर, कोई तोड़ मड़ोड़ के या कोई अप्लाइड क्वेश्चन नहीं आएगा आपको. इस पर से ऑर्गन के ऊपर कभी उसका साइज पूछ लेते हैं, ओके, उसका ब्लड सप्लाई पूछ लेते हैं. सो इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में ज्यादातर आते हैं. सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है. द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल जेनेटिलिया एंड द सेकंड वन इज इंटरनल जेनेटिलिया. ओके, सो एक्सटर्नल जेनेटिलिया इज आल्सो कॉल्ड एज द वल्वा. एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, दीज ऑल ऑर्गन्स आर ग्रुप टुगेदर एंड ये ग्रुप को हम बोलते हैं वल्वा. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज मॉन्स प्यूबिस. मॉन्स प्यूबिस इज द फर्स्ट पार्ट विच इज कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द प्यूबिक बोन. कहाँ पे है ये? इट इज कवरिंग द प्यूबिक बोन एंड इट इज अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर. ओके, अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर है ये एंड इट इज कवरिंग द प्यूबिक बोन. प्यूबिक बोन को ये कवर कर रहा है. देन कम्स द लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा इज प्रोटेक्टिंग द इंट्रोइटस एंड यूरेथ्रल ओपनिंग. क्या कर रहा है ये? यूरेथ्रल ओपनिंग एंड इंट्रोइटस को प्रोटेक्ट कर रहा है. एंड लेबिया मेजोरा आर द टू फ्लैप्स ऑफ फैट. ओके, फैटी टिश्यू से लेबिया मेजोरा बना हुआ है एंड व्हाट इट इज डूइंग, इट इज प्रोटेक्टिंग द इंट्रोइटस एंड इट इज प्रोटेक्टिंग द यूरेथ्रल ओपनिंग. देन labia minora. Labia minora is made up of an erectile connective tissue. What it is made up of? It is made up of an erectile connective tissue. That means इसका जो connective tissue है that is highly sensitive. Okay, and labia majora के अंदर labia minora है. Okay, so the outer covering is called as labia majora and the inner part is called as labia minora that darkens and swells during sexual arousal. So in the act of coitus or in a sexual act, what is happening? The labia minora is darkening and it is swelling. Okay, and you can also see mons pubis and labia majora पे hair form होते हैं. Okay, the hairs are usually found at mons pubis and labia majora. Then labia minora कैसा structure है? This is made up of highly sensitive connective tissue which gets darkened and swollen during an act of coitus. Okay, then comes the clitoris. Clitoris is located under the prepuce. Okay, and it is highly sensitive organ which is composed of nerves and blood vessels and erectile tissue. Now this is also an highly sensitive organ. Now the question can come that which organ resembles the male penis. Okay, male penis से कौन सा organ female का resemble करता है? So the answer will be clitoris. So clitoris is an organ which is resembling the male penis. Okay, so this question can come in the exam. Make sure you know this answer. And this structure contains high sensitive blood vessels along with nerves. Okay, वहाँ पे the amount of blood vessels and nerves are more and they are highly sensitive. So this thing, this clitoris is also an erectile tissue. So labia minora and clitoris both are erectile tissue. Both are made up of erectile connective tissue and both are sensitive to sexual act. See, this is the structure. Okay, this part is labia majora. This is mons pubis, cushion like structure. Inner part is called as labia minora, अंदर का part. Okay, inner part is called as labia minora. This part is called as clitoris. Okay, this is the part which is called as clitoris. Then comes the urethral opening located direct below the clitoris. So clitoris के below when you are seeing the structure, you can see that यहाँ पे दो opening है. Okay, these two openings are there. So the opening which is lying below the clitoris, जो exact clitoris के नीचे है, exact clitoris के below है, that is called as urethral opening. Okay, that is called as urethral opening. Then vaginal opening, it may be covered with a sheet called hymen. Okay, so now urethral opening के नीचे वाला जो part है, that is called as vaginal opening, and that part is covered with a thin sheet which is called as hymen. Okay, so hymen is a tissue which is covering the vaginal opening. Then comes the perineum.
So perineum is basically a muscle which is located between vaginal opening and anal canal. So this is your anal canal. Yes, this is the anal canal and this is the vaginal opening. और इसके बीच में जो भी muscle है, that is called as perineal muscle. Now perineal muscle का importance कहाँ आता है? So perineal muscles का importance आता है when the mother is delivering. Okay, at the time of delivery, the perineal muscles are given high consideration. Why? Because perineal tear होने के chances ज़्यादा है. If you are not performing episiotomy at right time, what will happen? Perineal tear will happen. Okay, and if episiotomy भी अगर टेक्निक से परफॉर्म नहीं किया है, at that time also क्या होगा? Perineal tear होगा, उसके वजह से further complications मदर को हो सकते हैं, and that can lead to life-threatening condition. Okay, life-threatening condition can occur because of abnormal tear of perineum. अगर perineal का tear unnoticed है, that will lead to bleeding. Mother will go in hypovolemic shock. Okay, excessive bleeding will lead to hypovolemic shock. Now the perineal tear is there, that means the skin integrity उसकी break है, and that is an open area for growth of microorganisms. ठीक है, वहाँ पे bacteria invade कर सकते हैं, and that will lead to further complications, organ infection, and उसके बाद का complication है sepsis. Okay, so perineal muscles are important. That is why the perineal muscle need to be cut. That is, episiotomy needs to be performed at right time, and episiotomy needs to be done when the head is crowning. ये सब क्या है हम आगे पढ़ेंगे. episiotomy कैसे परफॉर्म करते हैं, कितनी टाइप है, कब परफॉर्म करनी है. Okay, crowning क्या है, everything will study. But perineal muscle is also a concern. Though that organ is of least importance in a normal adolescent girl, एक female के अंदर that organ is of least important, but it is more of a concern in case of delivery. Okay, so while delivering you have to make sure that perineal muscles are not tear, and at a proper time you are performing episiotomy. So these things you need to keep in mind while undergoing normal delivery, while assisting the normal delivery. Now internal genitalia. Internal genitalia that consist of vagina, cervix, uterus, fallopian tube and ovaries. ओके, ये बाहर से अंदर जा रहे हैं. ओके, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर वजाइना, देन उसके बाद सर्विक्स, उसके ऊपर जाए तो यूट्रस, यूट्रस के ऊपर जाए तो फैलोपियन ट्यूब, और उसके बाद में ओवरीज. सो दिस स्ट्रक्चर इज फ्रॉम आउटर पार्ट टू द इनर पार्ट की बात करें. सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर सीन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वजाइना? So vagina connects the cervix to the internal genitals. So what is doing the vagina? The main function of vagina is to connect the cervix to the uterus or to the other organ. Now vagina is the place which is in between the cervix and uterus. Okay, so cervix will come first. तो outer part में सबसे पहले after the vaginal opening, उसके बाद में directly cervix आएगा, उसके बाद vagina आएगा, उसके बाद uterus आएगा. Okay, so vagina, what it is doing, it is connecting the outer genitals with the internal genitals. Then comes the cervix. Cervix connects the uterus to the vagina. What cervix is doing? Cervix is connecting the vagina to the uterus. Okay, so vagina is the outermost part, and outermost part के बाद में cervix है, and cervix के बाद में क्या है? Uterus. Okay, so vagina is connecting, cervix is connecting vagina to uterus. Okay, and what vagina is doing? Vagina is connecting external organs to internal organs. ये लोगों का function है. Now what is uterus? So uterus is an organ which is made up of endometrium, perimetrium and myometrium. Okay, ये तीन layers है uterus की, उससे बना है. Uterus is the place where the baby matures. Okay, जो baby का जो implantation है, that takes place in uterus, and बेबी का मैच्योरेशन जो 9 मंथ का साइकिल है, दैट टेक्स प्लेस इन यूट्रस. अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस्ट्रुएशन और द मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस इन यूट्रस. ओके, सो मेंस्ट्रुएशन के लिए यूट्रस इज अ कंसर्न, चाइल्ड बर्थ के लिए यूट्रस इज अ कंसर्न. सो यूट्रस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, नाउ इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम. एग्जाम के अंदर आपको कभी इसका साइज पूछ लेते हैं, कभी इसकी पोजीशन पूछ लेते हैं, इसका वेट प्रेगनेंसी में कितना होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. सो दिस टॉपिक, दिस यूट्रस इज कंप्लीटली एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम डेली लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो यूट्रस इज इम्पॉर्टेंट. नाउ यूट्रस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, दैट इज एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम. तीनों लेयर्स से बना है, एंड यूट्रस इज द ऑर्गन वेयर इट इज प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द बेबी फॉर ग्रोथ. ओके, प्लासेंटा डेवलपमेंट भी यूट्रस में ही होता है.
So uterus is of prime importance. Then comes the fallopian tube. Sorry. Fallopian tube is the pathway for the ovum to the uterus, and it is a site of fertilization. Please don't get confused. Uterus is a site of implantation and fallopian tube is a site of fertilization. Fertilization, that means क्या हो रहा है यहाँ पे? When the sperm and ovum is uniting, that part is fallopian tube. फिर जब zygote बनता है तो वो zygote uterus में आके invade होता है. Okay, so site of implantation is uterus and site of fertilization is fallopian tube. Okay, so question आ जाता है. So जब options देते हैं तो students usually get confused कि site of fertilize and site of implantation में they write fallopian tube, which is wrong. Site of implantation will always be uterus. Sorry, and site of fertilization will always be fallopian tube. तो fallopian tube के अंदर fertilization होगा, zygote formation होगा, and वो zygote implant कहाँ होगा? Uterus में होगा. So that is the difference. Okay. Now comes the ovaries. The ovaries are the female gonads or sex glands. So in females, the sex glands are ovaries. In males, it is testes. Okay. So make sure if this question is coming, you are knowing the answer. Okay, so sex gland is ovary in female. Now, the follicles in ovaries produce the female sex hormones along with progesterone and estrogen. So, progesterone and estrogen are the female sex hormones which are produced by ovaries. Ovaries are producing these hormones with the influence of FSH and LH. उन लोगों के इन्फ्लुएंस में क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ओवरीज में से सीक्रेट होते हैं. नाउ द क्वेश्चन कैन कम दैट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर सीक्रेटेड बाय. तो आपको ऑप्शन आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस एंड ओवरी. सो यू हैव टू राइट ओवरीज देयर. ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी में से FSH एंड LH सीक्रेट होते हैं. So FSH and LH are basically influencing the ovaries to secrete those hormones which are estrogen and progesterone. तो estrogen and progesterone जो है वो FSH और LH के influence में secrete होते हैं. कहाँ से? Ovaries में से. And FSH and LH are secreted by anterior pituitary. So if the question can come, make sure you are taking ovaries as a correct answer and not pituitary gland. Pituitary gland is secreting FSH and LH, not estrogen and progesterone. So estrogen and progesterone are the hormones which are secreted by ovaries. And also what the ovaries is doing? The ovaries are producing eggs, female eggs, that is the ovum. Okay, ovum is produced by ovaries. Okay, now we'll study vagina in detail. Vagina is a fibromusculomembranous sheet which is communicating the uterine cavity with exterior at the vulva. Okay, so vagina is basically a part of, now see students, यहाँ पे question आता है, vagina is a part of internal reproductive organ, whereas vaginal opening is a part of external reproductive organ. ओके, तो वजाइनल ओपनिंग के बारे में पूछा है, इंट्रोइटस के बारे में पूछा है, यू विल राइट दिस इन एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. बट जब वजाइना की बात हो रही है तो वजाइना कम्स इन इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. उसका ओपनिंग को एक्सटर्नल में कंसिडर किया है, बट द होल ऑर्गन इज कंसिडर्ड इज इन इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Okay, so this is a fibromuscular sheet. Now see, it is completely a muscular structure which is having a lot of membranes along with fibers, muscle fibers along with membrane. And what it is doing, it is communicating the uterine cavity with external vulva. So external organ और internal organ के बीच में जो common connection है उसको हम बोलते हैं vagina. Okay, so vagina is the canal which is connecting internal organ to external organ. Internal organ में कौन सा important है हमारा? Uterus. तो uterus को वो external organ से connect कर रहा है. That is vagina. Now it is an organ of copulation and forms the birth canal of parturition. That means in a pregnant lady, in a pregnant female, this vagina acts as a birth canal. Okay, this is the place where the baby can pass and the baby can take birth through vagina. Okay, the baby will pass through vagina in order to come in the external world. बाहर आने के लिए उसको कहाँ से पास होना पड़ेगा? That the baby has to pass through vagina. So uterus से जब वो vagina पे के through क्या होगा? External world में आएगा. So vagina is the birth canal. It's not uterus. Uterus is not the birth canal. Birth canal is vagina.
ठीक है, हम बहुत सारे पेपर्स देखते हैं, स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस कॉमन मिस्टेक, बर्थ कैनाल इज यूट्रस फॉर देम, दैट इज रॉन्ग. The answer is vagina. Okay, vagina is a birth canal for the parturited women. Okay, at the time of parturition, at the time of childbirth, the birth canal is vagina. Now, this is also an important act of copulation. Now, this is the place where the sperm is secreted via male reproductive organ. Okay, so the sperm will be released in this part. Okay, vagina के अंदर sperm release होंगे at the time of copulation. Then the canal is directed upward and backward. कैसा इसका position है? Upward and backward tilted है ये, forming an angle of 45 degree with an horizontal in erect position. So when a female is standing in an erect straight posture में अगर आपने एक female को you have make them stand, ओके उस टाइम पे क्या होगा, 45 डिग्री का एंगल द वजाइनल कैनाल विल क्रिएट. ओके, सो वजाइनल कैनाल कैसा है, स्लाइड अपवर्ड एंड बैकवर्ड, वो टिल्टेड है थोड़ा. एंड व्हेन द वुमेन इज स्टैंडिंग इन इरेक्टाइल पोजीशन, कौन सा एंगल बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा. ओके, ये क्वेश्चन मैंने देखा है कहीं ना कोई कॉम्पिटिटिव के अंदर आता है. ओके, एंगल पूछ लेते हैं, पेल्विस का एंगल पूछ लेते हैं, पेल्विस इज 30 डिग्री टिल्टेड and vagina is 45 degree tilted. So you need to remember vagina is 45 degree tilted. Now the vaginal secretion is derived from the glands of cervix, uterus, transudation of vaginal epithelium and Bartholin's gland. तो यहाँ इतने सारे जगह से वजाइना का सिक्रीशन बनता है. ओके, द वजाइनल सिक्रीशन इज secreted from is derived from the glands of cervix, uterus, transudation of vaginal epithelium. Vaginal epithelium खुद से भी, वजाइना का खुद का epithelium is also secreting along with Bartholin's gland. All these areas are secreting the secretion which is collectively called as vaginal secretion. Now the pH is acidic. Vaginal pH is acidic with an average of 4.5. Now why it is acidic? In order to prevent the invasion of microorganisms. Okay, in order to prevent infection, the pH of vagina is acidic. Okay, and also this is because of activity of gram positive bacillus which is called as Doderlin's bacilli in the vagina. Okay, Doderlin's bacilli की वजह से इसका जो pH है this is acidic. Okay, and what it is doing, this is this Doderlin's bacilli is converting the glycogen present in the vaginal mucosa into lactic acid. Okay, lactic acid में वो convert कर रहा है glycogen को. Glycogen is an excessive form of glucose. Okay, now glycogen is being converted into lactic acid so that the vaginal pH is maintained towards acidic side. So what it is doing, it is converting the glycogen into which compound? Lactic acid. Okay, so a question can come, the glycogen is converted into following compound by Doderlin's bacteria bacilli. तो उसके अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शंस होंगे, एसिटिक एसिड, देन अदर लिनोलिक एसिड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे. सो यू हैव टू टिक देयर एज लैक्टिक एसिड. ओके, सो इट इज कन्वर्टिंग द ग्लाइकोजन, ओके, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड टू मेंटेन द पीएच एसिडिक. और एवरेज पीएच कितना है इसका, 4.5. 4.5 is the average pH in the range. हमेशा एक रेंज याद रखनी होती है, that range is 4 to 5.5. Okay, so this is acidic pH of vagina. Okay, now coming to the acidic pH, what is the significance of acidic pH? Now the acidic pH prevents growth of other pathogenic microorganisms. So this is preventing the growth of microorganisms. As I said this, मैंने ये बता चुकी हूँ आपको कि क्या कर रहा है, pH जो है उसका acidic है, उस वजह से further microorganisms enter हो सकते नहीं है, growth हो सकता नहीं है, and this is the main function of vagina. Now the vagina is supplied by cervico-vaginal branch of uterine artery and vaginal artery. Now the question can come, blood supply to uterus, blood supply to vagina, blood supply to other organs. ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. तो वजाइना को कौन सप्लाई कर रहा है, और इट इज अ ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी. यूट्राइन आर्टरी का ब्रांच क्या कर रहा है, वजाइना को ब्लड सप्लाई कर रहा है, दैट इज सर्वाइको-वजाइनल ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी एंड वजाइनल आर्टरी. ओके, so uterine artery and vaginal artery are providing blood supply to vagina. See, as you can see in this structure, this is uterus, this part is vaginal canal, फिर आता है cervix यहाँ पे, and cervix के ऊपर आता है ये uterus, and this is the fallopian tubes, और fallopian tubes के साथ में
ये ओवरी एंड दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है पीछे, दैट इज ब्रॉड लिगामेंट। ओके, ये है ब्रॉड लिगामेंट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज इंटरनल जेनाइटल। ओके, इंटरनल जेनाइटल का स्ट्रक्चर है। द फर्स्ट पार्ट जाते ही यहाँ से हम आउटसाइड टू इनसाइड जाते हैं, तो द फर्स्ट पार्ट विल बी वजाइना, देन यहाँ हियर कम्स द सर्विक्स, एंड सर्विक्स के ऊपर आएगा uterus. So this whole part is called as uterus, and then this part is called as fallopian tube. Okay, this is the fallopian tube. और जो ये नीचे जी वाला जो part है, this part is called as ovaries. Okay, this is ovary. And ये वाला जो structure है, ये वाला जो structure है, that is called as broad ligament. Okay, so this is about the internal genitals of female reproductive system. Okay, then comes the uterus. Now uterus is a hollow pyriform muscular organ situated in the female pelvis behind the bladder in front and between the bladder in front and rectum behind. Okay, so this is an organ which is situated in between. बीच में है ये, इसके आगे क्या है, ब्लेडर है, इसके पीछे क्या है, रेक्टम है. Okay, so and the uterus is in between, and the uterus is pear shaped organ, pyriform muscular organ is pear shaped muscular organ, a complete muscular structure. This is completely made up of muscles, no bony structure here. Okay, bony structure nahi hai, this is completely a muscular organ and it is situated in the pelvis. pelvis bone है, जो female का pelvic girdle है, उसके अंदर uterus है. Okay, so this is situated in the pelvis and क्या है इसके आगे, रेक्टम, ब्लैडर है और इसके पीछे रेक्टम है. एंड द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इज एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, पूछते हैं ये एग्जाम में, नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस. ओके, so that is anti-version and anti-flexion, not retroversion and retroflexion. This is anti-version and anti-flexion. ठीक है, एंटी वर्जन एंटी फ्लेक्शन एक ऑप्शन है, एक रेट्रोवर्जन रेट्रोफ्लेक्शन, रेट्रोवर्जन एंटी फ्लेक्शन. तो इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे आपके पास में. यू हैव टू टिक एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन. Now the size of uterus, this is also important. Size of uterus includes 7.5 centimeter into 5 centimeter into 2.5 centimeter. Okay, so this is the length, breadth and width or height of the uterus. Then the uterus varies from 50 to 80 grams. So normal weight of a non-pregnant uterus. These we are talking about non-pregnant uterus. Pregnant uterus में size बढ़ जाएगा, weight बढ़ जाएगा, blood supply बढ़ेगा. ओके, मस्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस होंगे, क्रिस क्रॉस पैटर्न के अंदर वो अपने आप को चेंज करेंगे सो दैट अ बेबी कैन इन्वेड देयर. Okay, so these are the changes for a pregnant uterus. Right now we are talking about non-pregnant uterus. So non-pregnant uterus weighs from 50 gram to 80 gram. Okay, इतना weight उसका होता है normal. Okay, now the parts of uterus are body or corpus, isthmus and cervix. ठीक है, तो body, isthmus and cervix. Body is also called as fundus. Okay, so fundus, isthmus and cervix 3 पार्ट में डिवाइडेड है यूट्रस हमारा. एंड द यूट्राइन कैविटी, द नॉर्मल लेंथ ऑफ यूट्राइन कैविटी 6 to 7 सेंटीमीटर इंक्लूडिंग सर्वाइकल कैनाल. तो सर्विक्स को इंक्लूड करके कितना सेंटीमीटर है इसका, 6 से 7 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ यूट्राइन कैविटी. इतनी लंबी है यूट्राइन कैविटी. ओके, 6 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग. And the parts, there are 3 parts: body or corpus, isthmus and cervix. Okay, now the layer of uterus, this is also important. Layer of uterus includes perimetrium. Perimetrium is the outer one. Include serous coat that covers the entire organ. So the entire organ is covered with perimetrium. Okay, जो completely an organ का जो स्ट्रक्चर एकदम एंटायरली कवर कर रहा है, दिस रीजन, दिस पार्ट, ये जो आउटर, ये बॉर्डर, ये आउटलाइन आप लोगों को दिख रही है, दिस इज पेरीमेट्रियम.
ओके दिस पार्ट जो आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम. Now myometrium is the middle layer. Okay, now this is thick bundle of smooth muscles. कौन सा मसल है यहाँ पे? The type of muscle is smooth muscle. Okay, which are arranged in 3 distinct layer. और ये जो है उसको हमने 3 different distinct layer के अंदर divide किया है. This inner part, which is the thickest part, this is the myometrium. Okay, outer part is called as perimetrium. Inner middle part is called as myometrium. Okay, and this myometrium is made up of thick muscle fibers. इसलिए इसको थोड़ा darken कर देते हैं. Okay, because that is a thick layer. Okay, so thick muscle fibers which are arranged in 3 distinct layers. 3 layers के अंदर इसको divide किया है. That is the outer longitudinal, middle interlacing and inner circular layer. Okay, तो outer layer कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडनल, मिडल विल बी इंटरलेसिंग, दोनों एक दूसरे को इंटरलेस कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर से निकल रहे हैं, दैट इज इंटरलेसिंग. ओके, एंड द इनर लेयर्स आर अरेंज्ड इन अ सर्कुलर पैटर्न. इस लेयर के इस टाइप के अंदर, इस मैनर के अंदर, इस फैशन के अंदर मायोमेट्रियम के मसल्स अरेंज्ड है. ओके, देन कम्स द एंडोमेट्रियम. नाउ द क्वेश्चन कैन कम, द एंडोमेट्रियम ऑफ अ प्रेग्नेंट यूट्रस इज कॉल्ड, सो दैट इज कॉल्ड एज डेसिडुआ. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव में आता है. द एंडोमेट्रियम ऑफ अ प्रेग्नेंट यूट्रस इज कॉल्ड डैश. ओके, सो द आंसर इज डेसिडुआ. एंड नो, इट इज द एंडोमेट्रियम व्हिच इज कॉल्ड एज डेसिडुआ. एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोल रहे हैं हम, नॉट पेरीमेट्रियम, नॉट मायोमेट्रियम. कभी कभी बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर मायोमेट्रियम लिख के आते हैं, दैट इज रॉन्ग. ओके, एंडोमेट्रियम दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस का, वो उसको डेसिडुआ बोलते हैं, नॉट मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम को नहीं बोलते हैं. ओके, इट इज द एंडोमेट्रियम व्हिच इज कॉल्ड एज डेसिडुआ, नॉट द मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम और XYZ लेयर. ओके, नाउ द एंडोमेट्रियम इज द म्यूकस लाइनिंग. सी, द पेरीमेट्रियम इज अ सेरस मेम्ब्रेन है यहाँ पे. मायोमेट्रियम के अंदर स्मूथ मसल है और एंडोमेट्रियम के अंदर म्यूकस लाइनिंग है. मतलब तीनों लेयर की खुद की कुछ ना कुछ स्पेसिफिसिटी है. ओके, सो दिस इज द म्यूकस लाइनिंग व्हिच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. यस, the endometrial line is constantly changing because of the influence of hormones. Okay, during menstrual cycle in the form of blood, which layer of uterus is shredding? That is endometrium. Okay, this is also a competitive question. Which layer of the uterus is shredding in the menstrual blood? So the answer is endometrium. It's not perimetrium, it's not myometrium. It's the endometrium which is shredding out. ओके, एंडोमेट्रियम जो है वो मेंस्ट्रुअल ब्लड के फॉर्म में इट इज रिलीजिंग आउट ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज द लेयर व्हिच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन. इसके इन्फ्लुएंस के अंदर कॉन्स्टेंटली एंडोमेट्रियम चेंज होता है. और एंडोमेट्रियम हमारा प्रेग्नेंट यूट्रस के एंडोमेट्रियम को हम बोलते हैं डेसिडुआ. ओके, इट इज कॉल्ड एज डेसिडुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. द एंडोमेट्रियल सिक्रीशन इज स्कैंटी एंड वाटरी. कैसा सिक्रीशन है इसका? स्कैंटी एंड वाटरी. नाउ व्हेन द स्पर्म एंटर्स दिस सिक्रीशन बिकम थिक. ओके, अभी कैसा सिक्रीशन है इसका? वाटरी सिक्रीशन है. बट व्हेन द स्पर्म इन्वेड्स इन द फीमेल जेनिटल एंड व्हेन द स्पर्म इज अबाउट टू मीट द ओवम, उस टाइम पे इसका सिक्रीशन थिक हो जाते हैं, थिक एंड कोपियस सिक्रीशन हो जाते हैं. ओके, so this is the change which is seen during pregnancy. The physical and chemical properties of cervical secretion changes with menstrual cycle and with pregnancy. ठीक है, तो उनका menstrual cycle के according उसका physical secretion physical and chemical properties जो है वो change होती रहती है. That depends on pregnancy whether the female is pregnant or it is a menstruation. Okay, उसके according उसका physical and chemical properties change रहता है. Now the cervical gland secretes alkaline mucus. See, वजाइनल सिक्रीशन की बात की थी हमने, दैट वाज एसिडिक. सर्वाइकल सिक्रीशन इज अल्कलाइन इन नेचर. ओके, सो सर्वाइकल सिक्रीशन इज अल्कलाइन. म्यूकस विद pH ऑफ 7.8. इसका pH कितना है? 7.8. वेयरएज हमने वजाइना का कितना पढ़ा था? 4 to 5.5 एंड एवरेज इज 4.5. ओके, सो एक ही ऑर्गन हमारा है, एक ही हमारा सिस्टम है, बट इन दैट सिस्टम अलग अलग जगह पे pH वेरी हो रहा है. नाउ सी, दिस इज वजाइना, यहाँ पे एसिडिक pH है, इधर अल्कलाइन pH है.
ओके, सो दिस द हियर अल्कलाइन पीएच है, यहाँ पे एसिडिक पीएच है। ऑर्गन इंटरनल रिप्रोडक्टिव के ही है, लेकिन दोनों ऑर्गन के अंदर पीएच वेरी हो रहा है, और दोनों ऑर्गन के अंदर पीएच कंप्लीटली अपोजिट है। एक के अंदर एसिडिक है, एक के अंदर अल्कलाइन है। और एसिडिक भी कितना, 4 पॉइंट से 5.5, 4 से 5.5। ओके, इतना एसिडिक है। और बाद में अल्कलाइन सर्विक्स में आने के बाद में बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है, अल्कलाइन म्यूकस हो जाता है। ओके, Okay, cervical mucus contributes significantly to the normal vaginal discharge. Cervical mucus is an important aspect for vaginal discharge or vaginal secretion. Then apart from forms the mucus plug, which functionally closes the cervical canal and has a bacteriolytic action, which is called as operculum. ओपरक्यूलम जो है वो दैट इज अ म्यूकस। ओके, वो एक म्यूकस का प्लग है दैट इज क्लोजिंग द सर्विक्स। सर्विक्स को क्लोज रखता है वो। जब सर्विक्स डायलेट होता है तब ये ओपरक्यूलम रिलीज हो जाता है। ये ओपरक्यूलम क्या है, यही म्यूकस प्लग है। ओके, और ये म्यूकस प्लग जब रिलीज हो जाता है तो उसके साथ में क्या होता है, टिंज ऑफ ब्लड रिलीज होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ब्लडी शो। उसको हम शो बोलते हैं। ओके, ब्लडी शो, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ब्लड अलोंग विथ म्यूकस, वो रिलीज होता है। ओके, व्हेन द म्यूकस प्लग, जब सर्वाइकल डायलेटेशन होता है, जब ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है एंड व्हेन द सर्विक्स इज डायलेटिंग, उस टाइम पे क्या होता है, ये म्यूकस प्लग जो है, ये म्यूकस प्लग क्लोज रहता है सो दैट कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वजाइनल कैनाल के थ्रू अंदर यूट्रस के अंदर इन्वेड ना करे एंड जो बेबी है उसको हार्म ना पहुंचाए। So because of that, the mucus plug is closing the cervix. Okay, और when the at the time of delivery क्या होता है, ये जो mucus plug है ये remove हो जाता है, और that is characterized with the presence of blood and mucous membrane, which is called as bloody show. Okay, so bloody show is a significant sign of first stage of labor. First stage of labor में देखने मिलता है हमको bloody show. So this is the significance of mucus plug. अब ऐसे म्यूकस हम बात कर रहे हैं, सर्विक्स के अंदर म्यूकस है, सर्विक्स के अंदर म्यूकस है, तो उसका काम क्या है, सो दैट वर्क्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओके, एंड द यूट्रस इज सप्लाइड विथ यूट्राइन आर्टरी, वन ऑन ईच साइड। ओके, तो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों जगह से ब्रांच जो है एओटा की, दैट इज अ यूट्राइन आर्टरी, वो यूट्रस को सप्लाई कर रही है। नाम के अकॉर्डिंग उसका आर्टरी का नेम है, दैट इज यूट्रस को सप्लाई करने के लिए यूट्राइन आर्टरी, वजाइना को सप्लाई करने के लिए वजाइनल आर्टरी एंड यूट्राइन आर्टरी। ठीक है, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, ब्लड सप्लाई इज इंपॉर्टेंट, पूछते हैं ये एग्जाम के अंदर। ऑर्गन स्पेसिफिक, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन का आ सकता है। ओके, हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई कौन करवाता है, that is carotid artery, so you need to remember the blood supply of organs, that is important aspect for competitive. Okay, then next yes, next is fallopian tube. So up till now we studied vagina, we studied uterus, now we are going to study about fallopian tubes. So fallopian tubes क्या है, the uterine tube are paired structure measuring up to 10 centimeter. कितना है ट्यूब है ये, तो ट्यूब की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, एंड दिस इज अ पैड स्ट्रक्चर। अभी तक हमने सबसे पहला स्ट्रक्चर पढ़ा है जो पैड है, ठीक है, बाकी सारे सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर थे। सो देयर आर ओनली टू स्ट्रक्चर्स व्हिच आर पैड, दैट इज द ओवरी एंड द fallopian tube in the female reproductive system. Now the question can come, the number of organs which are paired in genitourinary of female, तो 3 हो जाएंगे क्योंकि वहां पे यूरेटर भी आएगा। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन, यहाँ पे ट्विस्ट आता है बच्चों, जब सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हुई है, सिर्फ जेनाइटल सिस्टम की बात हुई है, उस टाइम पे सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर पैर में, एक फैलोपियन ट्यूब, एक ओवरी। लेकिन जेनाइटो यूरिनरी की बात हुई है तो उसके अंदर किडनी भी आएगा, यूरेटर भी आएगा। ओके, सो देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स व्हिच आर पेयर्ड in genitourinary, and in reproductive only in female genital system only 2 structure are paired, that is fallopian tube and ovaries. So ये important है, इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा concentrate करने की जरूरत है। ओके, genitourinary पूछा है तो 4 स्ट्रक्चर पैर में है, और अगर सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा है तो 2 स्ट्रक्चर पैर में। कौन से 2 स्ट्रक्चर, कौन से 4 स्ट्रक्चर, यू नीड टू रिमेंबर दैट फिगर इन योर माइंड। जेनाइटोयूरिनरी की बात करें अगर हम, तो वो किडनी से चालू होता है, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम भी हमको इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो 2 किडनी है, 2 यूरेटर है, ओके, ब्लेडर एक ही है,
तो वो 2 स्ट्रक्चर हो गए और ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक के 2 स्ट्रक्चर तो है ही, सो उसको मिला के 4 स्ट्रक्चर हुए। बट सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की है तो फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। ओके, सो ऐसा क्वेश्चन आता है, तो मेक श्योर यू आर नॉट लूजिंग योर मार्क्स इन दिस बिकॉज यू आर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। ठीक है, आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, सो इट इज इजी फॉर यू नाउ टू स्कोर। और अब आपका थोड़ा ध्यान भी जाएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। Okay, so while solving these questions, please concentrate and please make sure to correct the right answer. Now, each tube has got 2 openings. ठीक है, दोनों fallopian tube के पास में दो opening है. Then one communicating with lateral angle of uterine cavity called uterine opening. जो uterus से connected है उसको uterine opening है. That is called as uterine opening. Now see, we'll see the figure over here. See this part. This is fallopian tube. Yes, and this fallopian tube when it is connecting to uterus, this portion is called as uterine opening. Okay, दोनों साइड पे है, टोटल 2 ओपनिंग है इसकी। तो एक ओपनिंग क्या है हमारा, यूट्राइन ओपनिंग, द पार्ट वेयर द फैलोपियन ट्यूब इज कनेक्टिंग द यूट्रस। Okay, which is 1 mm in diameter, and the other lateral part of the tube which is called as pelvic opening or abdominal ostium and measures about 2 mm in diameter. So the next opening is pelvic opening. Okay, pelvic opening where or abdominal ostium which is measuring 2 mm in diameter. Yes, this part. Okay. Then comes the parts of fallopian tube. The parts of fallopian tube include intramural or interstitial part which is lying in the uterine wall and measures 1.2 centimeter in length and 1 mm in diameter. Okay, so interstitium is the part which is connecting the uterine wall. Okay, uterine wall पे connect हो रहा है ये वाला part, not isthmus. इसके पहले वाला पार्ट इंटरस्टिशियम यानी बीच में किसके, यूट्राइन कैविटी और फैलोपियन ट्यूब को जोड़ने के लिए जो बीच वाला जो पार्ट है वो जो फैलोपियन ट्यूब का ही हिस्सा है उसको हम इंटरस्टिशियल पार्ट बोल रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इज इस्थमस। इस्थमस इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट स्ट्रक्चर। कैसा है ये, स्ट्रेट है एंड इट इज मेजरिंग अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। देन एम्प्यूला। Ampulla is the most common site of fertilization. Along with that, ampulla is the most common site of implantation in case of ectopic pregnancy. Okay, तो ये आपको organ का नाम सुनते ही उसके characteristics दिमाग में आने चाहिए. So ampulla is an organ which is fertilization takes place in this organ. Okay, ampulla पे it is a part of an organ which is फैलोपियन ट्यूब ऑर्गन है उसका पार्ट है एम्प्यूला, और एम्प्यूला के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और एम्प्यूला के अंदर ही इम्प्लांटेशन अगर हो गया तो इट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर सबसे कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इज एम्प्यूला। ओके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर एक्स्ट्रा यूट्राइन एंड इंट्रा यूट्राइन 2 टाइप के इम्प्लांटेशन होते हैं। यूट्रस के अंदर ही कोई दूसरे पार्ट में इम्प्लांट हो गया दैट इज इंट्रा यूट्राइन। एक्स्ट्रा यूट्राइन यानी यूट्रस के बाहर पेरिटोनियल कैविटी में हो गया, ओके, फैलोपियन ट्यूब में हो गया। सो दीज आर एक्स्ट्रा यूट्राइन कॉजेस, एक्स्ट्रा यूट्राइन पार्ट्स वेयर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैन अकर। सो उसके अंदर सबसे कॉमन साइट है जहाँ पे मेजर पार्ट जहाँ पे देखने मिलता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मेजर केसेस देखने मिलते हैं, दैट इज द एम्प्यूला। एंड एम्प्यूला इज द टॉर्चस पार्ट। ओके, सी दिस इज अ कर्व्ड पोर्शन। ओके, कर्व्ड एरिया है, ये कर्व्ड पार्ट है। इस्थमस स्ट्रेट है, एम्प्यूला इज द कर्व्ड। ओके, इट इज अ कर्व and in that is measuring about 5 centimeter in length. कितना लेंथ है इसका, 5 centimeter. Now infundibulum measures about 1.25 centimeter long with a maximum diameter of 6 mm. So infundibulum is the area which is of maximum diameter. सबसे ज्यादा diameter fallopian tube के अंदर कोई पार्ट का है तो वो infundibulum का है। Okay, infundibulum is the part which is the having highest diameter है इसका। See, this portion is called as infundibulum
एंड ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको फिम्ब्रिया बोलते हैं. ओके, दिस फिम्ब्रिया, इसके हेल्प से क्या होगा, यहाँ से ओवम जो है इट विल गो एंड स्टिक ऑन दिस फिम्ब्रिया, और ये फिम्ब्रिया के एक्शन की वजह से आगे जाएगा ये. ठीक है, यहाँ पे एम्प्यूला के अंदर आएगा, इधर से स्पर्म आएगा एंड यहाँ पे यूनाइट होंगे. सो दिस इज द एरिया वेयर द स्पर्म एंड ओवम गेट्स यूनाइटेड. ओके, एंड यहाँ से फिर क्या होगा, इधर से जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है वो जाइगोट फॉर्म होके यहाँ पे आके यूट्रस की बॉडी के अंदर वो इम्प्लांट हो जाएगा. ओके, फंडस के अंदर. सो दैट इज द फिजियोलॉजी ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. ओके, साइट्स पता होनी चाहिए आपको. ओके, नेक्स्ट इज द लेयर्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब. कितने लेयर है? सो देयर आर मेनली 2 लेयर्स. ठीक है ना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. यहाँ पे यूट्रस के अंदर 3 लेयर है एंड फैलोपियन ट्यूब के अंदर 2 लेयर है, सेरोसा एंड मस्कुलर लेयर. ठीक है, layers, number of layers, या how many layers are associated, how many layers are present in uterus, how many layers are present in ovary, how many layers are present in fallopian tube, क्वेश्चन आता है. तो आप लोग किसमें कंफ्यूज होंगे? नंबर्स में. सो नंबर्स यू नीड टू रिमेंबर. यूट्रस के अंदर 3 है और इसके अंदर 2 ही है. ओके, ओवरीज के अंदर भी 2 ही है. सो फैलोपियन ट्यूब के अंदर सेरोसा एंड मस्कुलर. सेरोसा कंसिस्ट ऑफ पेरिटोनियम on all sides except along the line of attachment of mesosalpinx. So serosa is a layer which is consisting of peritoneal cavity. Peritoneal cavity का जो layer है वो serosa के अंदर serosa layer, जो serosa the layer है that is consisting of the peritoneum. Okay, so peritoneal cavity का जो layer है that is the only one which is called as serosa. Okay, then comes the muscular layer. Muscular layer is arranged into the 2 layers, that is longitudinal and inner circular. Okay, inner circular and longitudinal. And the third layer is called as mucous membrane lined by columnar epithelium. So muscular layer के अंदर जो third part है that is called as mucous membrane. Okay, mucous membrane is lined by columnar epithelium. कौन से लेयर पे कौन सा एपिथेलियल टिश्यू से बना है? वो columnar epithelial टिश्यू से बना हुआ है. From the uterine and ovarian artery. Okay, so the blood supply will be from the arterial supply will be from the uterine and ovarian artery. And what is the function? The main function of it is to transport the gamete and to facilitate fertilization and survival of zygote through its secretion. क्या कर रहा है ये? It is the main site of fertilization and it is acting for transporting. It is acting as a vehicle. It is acting as a as an organ which is transporting the zygote into the uterus. ठीक है, फर्टिलाइज कहाँ हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में. और इम्प्लांट कहाँ हो रहा है? यूट्रस में. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. ओके, फर्टिलाइज कहाँ हो रहा है? ये फैलोपियन ट्यूब में. और इम्प्लांट कहाँ पे हो रहा है? यूट्रस के अंदर. ओके, एंड व्हाट इट इज डूइंग नाउ, दिस ऑर्गन इज इंपॉर्टेंट एंड दिस ऑर्गन इज ट्रांसपोर्टिंग किसको? जाइगोट को. कहाँ पे? यूट्रस में. कौन कर रहा है? फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, इस तरह से याद रखो. कौन, किसको, कहाँ, क्यों, कैसे पता होनी चाहिए. और कैसे कर रहा है? उसके सिक्रीशन के थ्रू. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर. ओके, नेक्स्ट इज ovaries. So ovaries are the paired sex organ or gonads in female which are concerned with germ cell maturation. So the female egg ka maturation and production is mainly concerned by ovaries. Okay, so ovary is the one which is oval in shape. उसके नाम से पता लग रहा है ovary, oval, इस तरह से याद रख सकते हो. Okay, so it is oval in shape and it is pinkish gray in color. Okay, pinkish gray in color and the surface is scarred during reproductive system. There are a lot of scar which is present during the reproductive period. So here you can identify that in a person in a female in which the menarche has not started, उसकी ओवरी नॉन स्कार्ड होगी. ठीक है, जिसकी मेनार्की स्टार्ट हो गई है, जिसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है, उसकी ओवरी स्कार्ड होगी. देखो यहाँ लिखा है it is scarred during reproductive period. Reproductive period, that means what? After the onset of menarche.
ओके सो जिसका मेनार्की स्टार्ट हो गया है उसके ओवरीज के अंदर स्कार होंगे, जिसके नहीं हुआ है उसके स्कार नहीं होंगे. एंड दिस स्कार्स आर कॉर्पस ल्यूटियम. ओके दिस स्कार्स आर कॉर्पस ल्यूटियम बिकॉज ऑफ मैच्योरेशन ऑफ ओवम. ठीक है, लॉट ऑफ ओवम्स जो है ओवरीज के अंदर, उसके अंदर से कोई एक ही मैच्योर होता है और एवरी मंथ वन ओवम गेट्स मैच्योर्ड. ओके एंड दैट ओवम इज then released into the fallopian tube, and if it is not fertilized that will lead to an act of menstruation. okay now इसी वजह से उसके ऊपर स्कार आ जाता है ओवरी के अंदर, and that scar is basically corpus luteum. okay now the measurement of ovary, now see this also you have to remember 3 to 1. कैसे याद रखोगे? 3 to 1. okay 3 centimeter, 2 centimeter, 1 centimeter. Now the ovaries are paired sex organs or gonads in female which are concerned with germ cell maturation. Sorry, this has been repeated. Okay, ऊपर की lines repeat हुई है. I'm so sorry. Then comes the layer. Single layer of cuboidal cell called as germ cell. Okay, single layer of cuboidal cell is इसके अंदर कितनी लेयर है? एक ही लेयर है. एक लेयर के दो पार्ट है. ओके एक लेयर के दो पार्ट है, दैट इज कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. फेलोपियन ट्यूब में 2 लेयर थी, यूट्रस के अंदर 3 लेयर थी. सो इस तरह से याद रखो आप, सबसे बड़ा ऑर्गन सबसे ज्यादा लेयर, सबसे छोटा ऑर्गन सबसे कम लेयर. ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब बीच में है तो उसके अंदर 2 लेयर है. ओके यूट्रस के अंदर 3 है और ओवरीज के अंदर एक ही है, वो एक लेयर के 2 पार्ट है, दैट इज कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. ओके नाउ दिस कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला इज आल्सो देयर इन एड्रेनल ग्लैंड. सो डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला ओवरी की बात हुई है. ठीक है, so cortex and medulla is also present in adrenal gland, but now we are not talking about adrenal gland, we are talking about ovaries. Now medulla, cortex has ovarian follicles, so ovarian follicles are the one through which the ovum is released. So वो कहाँ पे present है? cortex के अंदर. And medulla has blood vessels, nerves and tissue. So ये देखो, ये जो ovary है, इसके ये वाला जो part है जहाँ पे blood vessels वगैरह होंगे, वो वाला part हमारा medulla है और आगे का जो part है वो हमारा cortex है, जिसके अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट है. ये ओवेरियन फॉलिकल्स जब मैच्योर होते हैं तो इनके अंदर से ओवम रिलीज होता है. ओके सो ओवेरियन फॉलिकल्स आर बेसिकली इनटू कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला के अंदर ब्लड सप्लाई है. नाउ ब्लड वेसल्स है, नर्व्स एंड टिश्यूज है. नाउ ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है इसको? ओवेरियन आर्टरी. नाम से पता लग रहा है, उसका नाम है, उसी नाम की उसकी आर्टरी है. ठीक है, तो वजाइना को सप्लाई कर रही है यूट्राइन आर्टरी, वजाइनल आर्टरी. यूट्रस को सप्लाई कर रही है यूट्राइन आर्टरी. ओवरी को सप्लाई कर रही है ओवेरियन आर्टरी. ठीक है, उनके नाम के अकॉर्डिंग ही उसकी आर्टरी बनी हुई है, वही उनको ब्लड सप्लाई कर रहा है, बट ऐसा हर केस में नहीं होता है. ओके सो यू नीड टू रिमेम्बर कौन से ऑर्गन पे कौन सी आर्टरी उसको ब्लड सप्लाई करवा रही है. ओके सो दैट वाज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. टोटल 2 पार्ट हैं उसके, एक्सटर्नल जेनिटल, इंटरनल जेनिटल. ओके एक्सटर्नल जेनिटल कलेक्टिवली कॉल्ड एज वल्वा. वजाइना का काम क्या है? एक्सटर्नल जेनिटल इंटरनल जेनिटल को कनेक्ट करना. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ वजाइना. फिर यूट्रस के अंदर कितनी लेयर है? टोटल 3 लेयर्स है. एंडोमेट्रियम के अंदर ज्यादातर चेंजेस देखने मिलते हैं एंड एंडोमेट्रियम जो है उसी को हम डेसिडुआ बोलते हैं व्हेन द यूट्रस इज इन प्रेग्नेंट स्टेट. और फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर एम्प्यूला इज द मेन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन. ओके एंड एम्प्यूला इज द मेन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर भी कॉमन साइट वो एम्प्यूला ही है. ओके देन हमने ओवरीज की बात की, तो ओवरी इज द ऑर्गन फ्रॉम वेयर द ओवम इज रिलीज्ड एंड द ओवम इज फॉर्म्ड एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द ब्लड सप्लाई. ओके ब्लड सप्लाई कहाँ से किसका, कौन सा ऑर्गन को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, दैट वी हैव टॉक्ड. नाउ कमिंग टू द फीमेल पेल्विस. फीमेल पेल्विस के ऊपर से भी क्वेश्चन आता है. ओके मोस्टली इसके डायमीटर्स पे या फिर इसके लैंडमार्क पे क्वेश्चन आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंडमार्क ऑफ फीमेल पेल्विस. ये आपका क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से कोई एक जो है वो आपका फीमेल पेल्विस का लैंडमार्क नहीं होगा. सो यू नीड टू रिमेंबर द लैंडमार्क, यू नीड टू रिमेंबर द बोन्स. ओके बोन्स कौन से हैं फीमेल पेल्विस के? डायमीटर्स, नंबर सबसे ज्यादा यही घूमते हैं स्टूडेंट्स के. डायमीटर के अंदर आंकड़े याद नहीं रहते, नंबर्स याद नहीं रहते. ओके सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वी हैव टू रिमेंबर एंड वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द डायमीटर्स एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ फीमेल पेल्विस. ओके सो फीमेल पेल्विस इज ऑल्सो कॉल्ड एज pelvic girdle and female pelvis
is the bony canal. It is also called as pelvic girdle, and it is the bony canal through which a fetus should pass. So this is the bony structure. सबको पता है ये, skeletal system में पढ़ लिए. pelvis जो है वो bony structure है. फीमेल का pelvis जो है वो इतना specific इसीलिए है क्योंकि उसको उसमें से बेबी डिलीवर करवाना है. Okay, a baby needs to pass from the female pelvis. In case of SPND, spontaneous normal vaginal delivery के अंदर ही pelvis का significance है. If the woman is undergoing cesarean section, female pelvis का कोई काम नहीं है. Okay, so female pelvis is also called as pelvic girdle. It is the place from where a baby passes in order to take birth. Okay, in order to get delivered in the external environment. उसको बोलते हैं हम pelvic girdle. And this pelvic girdle के दूसरे functions क्या है? So this is separating the appendicular skeleton and axial skeleton. ओके, दोनों को सेपरेट कर रहा है. एक्सियल स्केलेटन यानी हमारा फीमेल पेल्विस के ऊपर वाला जो पार्ट है वो एक्सियल के अंदर आता है, और एपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो एसिडाब्युलम फीमर से आता है. जहाँ पे एसिडाब्युलम के अंदर जहाँ फीमर ज्वाइन कर रहा है वहां से हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन ज्वाइन होता है, चालू होता है. सो एपेंडिकुलर गर्डल एज वेल एज एक्सियल गर्डल, या तो फिर एपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? पेल्विक गर्डल. ठीक है, pelvis is the one which is separating ऊपर का बॉडी है नीचे का बॉडी. ऊपर का बॉडी is called as axial skeleton, नीचे का बॉडी is called as appendicular skeleton. Appendix means legs. Okay, so appendicular skeleton. Then also the female pelvis is providing support टू इंटरनल ऑर्गन्स, जो वाइटल ऑर्गन्स है हमारे, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है. बॉडी को सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग पोजीशन के लिए सपोर्ट करता है. इवन व्हेन द बॉडी इज सिटिंग एक इरेक्ट पोस्चर प्रोवाइड करता है. ओके, दैट इज पेल्विस. ओके, सो female pelvis is an important pelvis which is also called as gynecoid pelvis. Okay, an ideal pelvis for the delivery of the baby is gynecoid pelvis. Gynecoid pelvis का बहुत ज़्यादा significance है in gynecology. Okay, so the types of pelvis include, the first one is gynecoid, which is the ideal pelvis for the birth of baby. So for a birth of baby, which pelvis is an ideal pelvis? So that is an gynecoid pelvis. Okay, so gynecoid pelvis की characteristics क्या है? So this pelvis is having round inlet. तीन पार्ट है pelvis के, इनलेट, आउटलेट, कैविटी. ओके, तो इसका जो इनलेट है वो कैसा है? राउंड है. ठीक है, विथ शैलो पेल्विक कैविटी. इसकी जो कैविटी है दैट इज शैलो. ओके, सो दैट इज एन इजी. व्हाई इट इज शैलो? इन ऑर्डर टू डिलीवर द हेड ऑफ द बेबी, बिकॉज इवन द हेड, इफ द बेबी इज इन ब्रीच प्रेजेंटेशन, सेक्रम बेबी का, वो सारे पोर्शंस कैसे हैं? बोनी पोर्शन है. सो इन ऑर्डर टू हैव एन इजीली पास हो जाए वो, इसलिए उसका जो पेल्विक कैविटी है दैट इज शैलो. एंड इट ऑल्सो द पेल्विक इनलेट इज राउंड विथ शॉर्ट इस्चियल स्पाइन. इस्चियल स्पाइन कैसा है इसका? शॉर्ट है. ओके, एंड एंड्रॉइड पेल्विस. नाउ कम्स द एंड्रॉइड पेल्विस. एंड्रॉइड पेल्विस को हम मेल पेल्विस भी बोलते हैं. ओके, सो इन मेल जो पेल्विस होता है वो एंड्रॉइड पेल्विस है, और जो फीमेल है उसके अंदर गायनेकोइड पेल्विस होता है. ओके, अब एंड्रॉइड पेल्विस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट शेप पेल्विस. ये क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन हार्ट शेप पेल्विस? तो मोस्टली बच्चे यहाँ पे प्लेटिपेलॉइड लिख के आते हैं, बट प्लेटिपेलॉइड इज नॉट हार्ट शेप, इट इज किडनी शेप. ठीक है, किडनी शेप है प्लेटिपेलॉइड. और क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लेटिपेलॉइड लिख के मार्क्स घुमाते हैं. तो एंड्रॉइड पेल्विस जो है वो हार्ट शेप है. ठीक है, हार्ट शेप इज इन एंड्रॉइड पेल्विस, एंड एंथ्रोपॉइड पेल्विस इज ओवल शेप. एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो है वो ओवल शेप में है. ओपी, ओवल पॉइड, एंथ्रोपॉइड. ओके, एंथ्रोपॉइड. जो पेल्विस के अंदर पी वाला वर्ड आ रहा है उसके बाद में ओ है, ये देखो, ये ओ से ओवल याद रख लो. ठीक है, तो एंथ्रोपॉइड तो क्लियर हो गया, हमारा ओवल है. प्लेटिपेलॉइड जो है वो किडनी शेप में है. प्लेटिपेलॉइड पेल्विस इज किडनी शेप पेल्विस एंड फ्लैट टाइप. नाउ दिस पेल्विस इज फ्लैट. ओके, इसका जो कैविटी है वो कैसा है? फ्लैट है इसका. ओके, सॉरी, आउटलेट, एंड इट इज किडनी शेप. सो ये आपको ध्यान रखना है कि प्लेटिपेलॉइड पेल्विस और एंड्रॉइड पेल्विस के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है. एंड्रॉइड पेल्विस हार्ट शेप है और प्लेटिपेलॉइड पेल्विस किडनी शेप है. एंथ्रोपॉइड तो हमारा क्लियर है, वो ओवल शेप है. ठीक है, और जो गायनेकोइड पेल्विस है वो राउंड पेल्विस है, राउंड पेल्विक इनलेट. ठीक है, सो गायनेकोइड इज राउंड, एंड्रॉइड इज हार्ट शेप्ड, एंथ्रोपॉइड इज ओवल शेप्ड, एंड प्लेटिपेलॉइड इज किडनी शेप.
ठीक है, किडनी शेप पेल्विस इज प्लेटिपेलॉइड नॉट एंड्रॉइड। ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना और एग्जाम में गलत मत करके आना। Okay, then next comes the bones. Now the bones, total 4 bones are there. 2 innominate bone, 1 sacrum and 1 coccyx. Now see, this is the sacrum. ये लंबार वर्टिब्रा है, ठीक है, इसको हमको कंसिडर नहीं करना है। ये जो पार्ट है हमारा, ये यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज सेक्रम। अब सेक्रम के पीछे ही एक यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, वेस्टिजियल पार्ट, वो हमारा कॉक्सिक्स है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज कॉक्सिक्स। ये देखो यहाँ पे है, सॉरी, दिस टिप, ये टिप दिख रहा होगा, ये वाला जो है ये आपका सेक्रम है, ठीक है। ये सेक्रम के नीचे ये देखो, ये पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं कॉक्सिक्स। और ये जो पूरा विंग शेप का स्ट्रक्चर है ना, ये दिस इज कॉल्ड एज द इनॉमिनेट बोन्स। ये इनॉमिनेट बोन्स है। ये इनॉमिनेट बोन्स जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बोन्स है, ठीक है, 3 बोन मिलके ये पूरा सा बना है। ओके, इसके अलावा ये जो है ये सेक्रम है, और ये जो नीचे जो पॉइंटेड पार्ट है दैट इज अ वेस्टिजियल पार्ट, वेस्टिजियल ऑर्गन, दैट इज कॉक्सिक्स। ओके, okay, now the innominate bones क्या है? Now innominate bone consists of ilium, ischium and pubis. 3 पार्ट है, ilium, ischium and pubis. Let us see that. Sorry. Okay, so innominate bone consists of ilium, ischium and pubic bone. Ilium is a flat bone. कैसा है ये? It is a flat bone. Then ischium is thick lower bone. जो नीचे वाला जो bone है that is ischium, and pubis is the anterior part of pelvis. Now let me show you each of them. Okay, see this flat bone, no, this one, this is ilium. ओके, इशियम के बारे में क्या बोला हमने? वो थिक लोअर बोन है, तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज इशियम। ओके, और प्यूबिस इज द फ्रंट बोन, तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज प्यूबिस। ओके, ओके, सो दिस एरिया, दिस इज द फ्लैट पार्ट, ब्रॉड बोन जो है वो हमारी, वो इलियम है। नीचे की जो थिक बोन है वो हमारी इशियम है, और फ्रंट बोन जो है वो हमारी प्यूबिस है। ठीक है, तो ऐसी 2 इनोमिनेट बोन है, राइट साइड पे एक, लेफ्ट साइड पे एक। ओके, तो 2 इनोमिनेट बोन्स है, और वो 2 इनोमिनेट बोन के अंदर टोटल 3 बोन्स है। उसके अंदर जो हमारी ब्रॉड बोन है वो हमारी इलियम है, ठीक है, नीचे वाली जो बोन है वो हमारी इशियम है, और जो आगे एंटीरियर पार्ट में जो बोन है ये हमारी प्यूबिस है। ठीक है, अब ये जो तीनों बोन का फ्यूजन है वो होता है एसिटाब्यूलम पे। ठीक है, तीनों बोन एसिटाब्यूलम में मिलती है, एंड दिस पोर्शन जहाँ पे प्यूबिस और इलियम मिल रहे हैं ये इलियाक रैमस है। ओके, एंड इशियम और प्यूबिस यहाँ मिल रहे हैं, सो ये इशियोप्यूबिक रैमस है, और ये इलियोप्यूबिक रैमस है। ठीक है, जहां पे इलियम और प्यूबिस मिल रहा है वो इलियोप्यूबिक रैमस, और जहां पे इशियम और प्यूबिस मिल रहा है वो इशियोप्यूबिक रैमस। ठीक है, ये इसके पार्ट्स है। Okay, and the fusion of all 3 innominate bones occur at an acetabulum where the head of femur is attached. तो ये बनता है हमारा leg joint या फिर hip joint. ठीक है, the hip joint is the one in which the femur head is attaching to the acetabulum. Ball socket joint है हमारा, ball socket joint का type है, जिसके अंदर acetabulum जो है वो cavity है, और head of the femur is the ball, and वो मिलके बन रहा है हमारा leg joint या फिर hip joint. ओके, एसिटाब्यूलम पे। नाउ कम्स द सेक्रम। सेक्रम क्या है? सो सेक्रम इज अ वेट शेप्ड बोन कंपोज्ड ऑफ
फ्यूजन ऑफ 5 बोन्स, 5 बोन्स से मिलके जो एक बोन सा स्ट्रक्चर दिखता है वो हमारा है सेक्रम. Now what is coccyx? Coccyx is also called as vestigial tail which is triangular in shape. हमने देखा था जो pointed tip जैसा जो structure है which is triangular in shape which is formed of 3 bones. This is bones not bones, I'm so sorry. So this is formed by the fusion of 3 bones. 5 बोन मिला के एक बोन बनता है सेक्रम. ओके, एंड कॉक्सिक्स जो है वो 3 बोन मिला के बनता है. लेट मी शो यू सेक्रम एंड कॉक्सिक्स. yes, this bone, this is called as sacrum. okay, and ये जो टिप है ये दैट इज कॉल्ड एज कॉक्सिक्स. ओके, ये सेक्रम के ऊपर अब आपको यहाँ पे ये उपसा वसा पार्ट दिखेगा. दिस इज कॉल्ड एज सेक्रल प्रोमोन्ट्री. ओके, दिस इज सेक्रल प्रोमोन्ट्री. फिर ये जो होल्स है, ओके, दीज आर द हॉलो एरियाज ऑफ सेक्रम थ्रू विच नर्व वेसल्स या ब्लड वेसल्स पास होते हैं. ठीक है, ये होल स्ट्रक्चर में से. नाउ ये जो होल दिख रहा है आपको, ठीक है, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम तीनों ने मिलकर यहाँ पे कैविटी बना रखी है. ये कैविटी को हम बोलते हैं ऑब्चुरेटर फोरामेन. ओके, ऑब्चुरेटर फोरामेन बोलते हैं इसको, दिस पोर्शन. और ये जो यूनियन होता है वो एसिटाब्यूलम पे होता है. एंड एसिटाब्यूलम इज नॉट अ कैविटी, वो फोरामेन नहीं है, होल नहीं है वो. ओके, दैट इज अ डिप्रेशन, दैट इज नॉट अ होल. ओके, जो होल है वो ऑब्चुरेटर फोरामेन है. Okay, now comes the joints. Very important joints. There are total 4 joints. The first is symphysis pubis. 2 sacroiliac joint है और 1 sacrococcygeal joint है. Okay, so there are 1 symphysis pubis, 1 is sacroiliac, and the 1 is sacrococcygeal joint. यहाँ पे देख लेते हैं. ये है symphysis pubis. ठीक है, फाइब्रस कार्टिलेज है जो 2 प्यूबिक के बीच में है, दैट इज सिम्फाइसिस प्यूबिस. फिर हमने कौन सा बोला, सैक्रोइलियक. तो सैक्रोइलियक 2 है. ठीक है, ये सेक्रम और इलियक बोन, 2 इलियम बोन है, सेक्रल के 2 एज है, तो दोनों मिलके सैक्रोइलियक जॉइंट बनाते हैं. तो वी हैव टोटल 2 सैक्रोइलियक जॉइंट एंड द 1 इज सैक्रोकोक्सीजियल जॉइंट. दैट मींस सैक्रम और कोक्सिक्स के बीच में जो जॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज सैक्रोकोक्सीजियल जॉइंट. ओके, now comes the ligaments. Very important, ligaments. Ligaments include, the first one is interpubic ligament. Interpubic ligament कहाँ पे होगा, 2 pubic bones के बीच में. Okay, then comes the sacroiliac ligament. That means sacrum और iliac के वहाँ पे होगा ये. That means sacroiliac joint के आसपास यहाँ से पास होगा. Okay, sacroiliac. Then sacrococcygeal, that means between sacrum and coccyx. Sacrotuberous and sacrospinous. Sacrotuberous is present between sacrum and ischial tuberosity and sacrospinous is present between sacrum and ischial spine. ठीक है, ये सबके बीच में जो बोनी प्रोमिनेंस है, ischial tuberosity and ischial spine जो है वो फीमेल पेल्विस के पोस्टीरियर पार्ट में. ओके, पोस्टीरियर पार्ट में ischial tuberosity and ischial spine है. वहां से लिगामेंट्स जो निकल रहे हैं दैट एंड इट इज मीटिंग टुवर्ड्स सेक्रम, दैट इज कॉल्ड एज सैक्रोट्यूबरस एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स. yes, now the types of pelvis. Types of pelvis include false pelvis and true pelvis. ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, false pelvis and true pelvis. तो false pelvis कहाँ से चालू होगा, sacral promontory के ऊपर से. माने इधर जो एंटीरियर एस्पेक्ट है वहां पे यहाँ होगा आपका एब्डोमिनल वॉल. ठीक है, एब्डोमिनल वॉल होगा इधर, और इधर होगा आपका ये इलियक क्रेस्ट. ठीक है, दिस इज इलियक क्रेस्ट एंड दिस इज इलियक फोसा. ओके, this is iliac crest and this is iliac fossa. This is anterior superior iliac spine और यहाँ पे नीचे इधर पॉइंटेड स्ट्रक्चर है. दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन. ये देखो यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है दिस पार्ट. दिस इज एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन
और ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज एंटीरियर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर पेल्विस के पीछे है, ठीक है, पीछे की साइड में भी है, दैट इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और नीचे पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। सो जो फॉल्स पेल्विस है वो ऊपर से चालू हो रहा है, सैक्रल प्रोमोन्ट्री के ऊपर से, माने यहाँ आएगा लंबर वर्टिब्रा, ओके, इधर आपका लंबर वर्टिब्रा आएगा, इधर आपकी पेरिटोनियल कैविटी आएगी, ठीक है, ये हमारा ब्रिम है, दिस इज द ब्रिम, सैक्रल प्रोमोन्ट्री के वहां तक, दैट इज द ब्रिम ऑफ द पेल्विस, ठीक है, इसके ऊपर लंबर वर्टिब्रा है। सो वहां से एंड देन साइड पे क्या है आपका इलियक क्रेस्ट एंड इलियक फोसा। तो ये हो गए आपका पेल्विक फॉल्स पेल्विस के साथ में एसोसिएटेड ऑर्गन्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, एंड ट्रू पेल्विस इज बिलो द ब्रिम। तो ट्रू पेल्विस जो है वो बिलो द ब्रिम, यानी ये ब्रिम से नीचे, दैट मींस उसके नीचे आ जाएगा पीछे सेक्रम, आगे सिम्फाइसिस प्यूबिस, यूट्रस, वो सारे स्ट्रक्चर आ जाएंगे, और साइड के स्ट्रक्चर में कौन सा आ जाएगा, इलियोपेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, सेक्रोइलियक जॉइंट, ये सारे जो स्ट्रक्चर है वो उसके साइड में आ जाएंगे, ओके। एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर के अंदर आपका आ जाएगा सेक्रम, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस। फॉल्स पेल्विस एंड ट्रू पेल्विस इज इंपॉर्टेंट फॉर the true pelvis is important for delivery and false pelvis is important for supporting the structure, supporting the intestine, okay, so that is the function of false pelvis and true pelvis. Yes, now this is very 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 important, that is the landmarks of pelvis। आता है इस पर से क्वेश्चन, लैंडमार्क हम कैसे जाएंगे, ये जो लैंडमार्क है वो एंटीरियर से पोस्टीरियर जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज सिम्फाइसिस प्यूबिस, so this is the symphysis pubis। इसके बाद में क्या है, पेल्विक क्रेस्ट। नाउ सी दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा पेल्विक क्रेस्ट, देन पेल्विक ट्यूबरकल, पेल्विक ट्यूबरकल यानी यहाँ पे ऊपर ये जो उपसावा स्ट्रक्चर है दैट इज पेल्विक ट्यूबरकल, देन कम्स द पेक्टिनियल लाइन, ठीक है, यहाँ पे ये पेक्टिनियल लाइन है, देन इलियोपेक्टिनल एमिनेंस, यानी यहाँ पे आप जब पेल्विस को देखोगे हाथ में लेके या फिर इसका मॉडल, तब आपको पता लगेगा इधर एक थोड़ा सा ना एलिवेटेड सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इलियोपेक्टिनल एमिनेंस, और वो इलियोपेक्टिनल एमिनेंस के बाद में इलियोपेक्टिनल लाइन आएगा। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन पेक्टिनियल लाइन एंड इलियोपेक्टिनल लाइन, ठीक है, पहले पेक्टिनियल लाइन है, उसके बाद में एक एलिवेटेड सा स्ट्रक्चर आ रहा है, बम्प सा आ रहा है, उसको हम बोलते हैं इलियोपेक्टिनल एमिनेंस, उसके बाद में इलियोपेक्टिनल लाइन आ रही है, ठीक है। वो इलियोपेक्टिनल लाइन के बाद में क्या होगा, इधर सेक्रोइलियक जॉइंट आएगा यहाँ पे, ओके, दैट इज सेक्रोइलियक जॉइंट। इसके बाद में है एला ऑफ सैक्रम, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एला ऑफ सैक्रम, ओके। Then next is the sacral promontory, so this is the sacral promontory, this is sacroiliac joint, this part is called as ala of sacrum, okay, then इलियोपेक्टिनल लाइन जो है वो यहाँ से चालू होती है, ये इलियोपेक्टिनल लाइन है, यहाँ पे एक उपसावासा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं इलियोपेक्टिनल एमिनेंस, फिर आता है पेक्टिनियल लाइन, ठीक है, फिर यहाँ पे एक पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर है, ये है प्यूबिक ट्यूबरकल, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है हार्श स्ट्रक्चर, दैट इज प्यूबिक क्रेस्ट, एंड दिस इज सिम्फाइसिस प्यूबिस, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैंडमार्क्स। ये देखो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है ड्रॉ करके, ठीक है, ये देखो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है नीचे वाला ये हमारा प्यूबिक क्रेस्ट, ऊपर यहाँ पे आता है प्यूबिक ट्यूबरकल, फिर ये है पेक्टिनियल लाइन, फिर उसके बाद में एक छोटा सा बम्प जैसा स्ट्रक्चर आता है, एलिवेशन है, वो है हमारा इलियोपेक्टिनल एमिनेंस, फिर आता है इलियोपेक्टिनल लाइन, फिर आता है सेक्रोइलियक जॉइंट, फिर एला ऑफ सैक्रम, एला ऑफ सैक्रम में ना थोड़ा सा विंग जैसा स्ट्रक्चर है, ओके, एंड आफ्टर दैट दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज sacral promontory, okay, so these are the 9 landmarks of pelvis which are very important as far as concern of normal birth, ठीक है। एसपीएनडी की बात करें हम, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, स्पॉन्टेनियस नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी की बात करें, तो ये सारे एरिया के अंदर हेड का रिलेशन है,
ठीक है, जब इंटरनल रोटेशन होता है तो कौन से पार्ट पे आएगा पेल्विस के, सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स यानी यहाँ पे पेल्विक का फीटल का प्रेजेंटिंग पार्ट लैंड होगा, तो उसके बाद में these are the areas in which the presenting part of the female the presenting part of the fetus is touching. Okay, that is why it is called as landmarks of pelvis. Then after that, the parts of pelvis. So there are basically three parts of pelvis, that is inlet, cavity and outlet. Okay, तीन part है. Inlet is also called as brim, then cavity and the outlet. Okay, तीन parts हैं. अब इसके अंदर आते हैं important हमारे diameters. So first of all we'll study the diameters of inlet. Okay, inlet कौन से हैं? The first is anterior posterior diameter. तीन diameter है इसके, anterior posterior diameter, transverse diameter and oblique diameter. Okay, so anterior posterior का मतलब क्या होता है? आगे से पीछे. Yes. Oblique का मतलब टेढ़ा ऐसे, and transverse का मतलब इस तरह से. ठीक है, so that is called as एंटीरियर पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स एंड ओब्लिक डायमीटर। अब हमको ये हमारे जो स्ट्रक्चर है उसको याद रखना है। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब ये सीधा ही होगा, ठीक है। ट्रांसवर्स मतलब ऐसे लेटा हुआ, ओके, इस तरह से, एंड डायगोनल ये ऐसे, ओके। ओब्लिक 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 करते हैं ना हम, स्लैश मारते हैं, वो स्लैश जो है दैट इज ओब्लिक, ओके। नाउ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। सो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, that is called as true conjugate, that is 11 centimeter from tip of sacral promontory to the upper border of symphysis pubis. See, now this is the tip, यहाँ से चालू होके ये इधर तक जा रहा है, tip of sacral promontory to the tip of symphysis pubis, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है that is called as anterior posterior diameter का true conjugate, that is anatomical conjugate, okay। एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट कितना सेंटीमीटर है? 11 सेंटीमीटर। ट्रू कॉन्जुगेट कितना सेंटीमीटर है? 11 सेंटीमीटर, ओके। 11 सेंटीमीटर इज द ट्रू कॉन्जुगेट। ओके, देन नेक्स्ट ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट ये देखो, ओ यहाँ पे एक आगे 1 लगा दो, 10 to 10.5 सेंटीमीटर इज ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। इस तरह से आप ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट तो याद रख सकते हो, ठीक है। क्या करना है आपको? ऑब्स्टेट्रिक ओ से चालू हो रहा है, उसके आगे 1 लगा देना है। 10 सेंटीमीटर से 10.5 सेंटीमीटर उसकी रेंज है, ठीक है ना। ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट कहाँ से चालू हो रहा है? टिप ऑफ सेक्रल प्रोमोटरी टू द मोस्ट बल्जिंग पार्ट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, यानी ये अंदर की साइड जाएगा। यहाँ से चालू होके इधर से ये जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है ना, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के अंदर जब आप देखोगे तो अंदर आपको एक बम्प सा या एलिवेशन सा पार्ट देखने मिलेगा, ओके। वहां तक जाएगा ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, एंड दैट इज 10 to 10.5 सेंटीमीटर। Then comes the diagonal conjugate. Diagonal conjugate is 12 to 12.5 सेंटीमीटर, ओके। 12 to 12.5 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ से चालू हो रहा है? तो ये सेक्रल प्रोमोन्ट्री से चालू हो रहा है। सेक्रल प्रोमोन्ट्री से चालू होके सबसे नीचे वाला जो पार्ट है सिम्फाइसिस प्यूबिस का लोअर बॉर्डर। नाउ दिस बोथ आर ऑपोजिट, ठीक है। एंटीरियर पोस्ट एनाटॉमिकल एंटीरियर पोस्टीरियर एनाटॉमिकल डायमीटर या तो फिर ट्रू कॉन्जुगेट का डायमीटर है टी, ठीक है। इसे टी लिखते हैं हम, टी। तो ये जो टी के ऊपर की डंडी है उसको साइड में कर दो, तो ये 1 और 1 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। याद रखो ऐसे स्टूडेंट्स, ये इतना सिली रीजन, दिस इज ओनली टू मेक यू लर्न, ओके। इतना सिली पढ़ाने का मेरे को कोई शौक नहीं है, दिस इज जस्ट टू मेक यू रिमेमोराइज दिस, ठीक है। वो एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट लेके दिमाग में बैठ के 10 मिनट तक 15 मिनट तक रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। दिस ऑल आर द ट्रिक्स थ्रू विच यू कैन रिमेम्बर, ओके। सो ट्रू कॉन्जुगेट इज 11 सेंटीमीटर, एंड ये कहाँ से चालू हो रहा है? दोनों की अपर बॉर्डर है। इसका एग्जैक्ट अपोजिट है डायगोनल। डायगोनल में एक का अपर है, एक का लोअर है। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस का लोअर बॉर्डर और सेक्रल प्रोमोटरी का टिप, यानी यहाँ से यूं नीचे जाएगा, डायगोनली जाएगा, डायगोनली, ओके। यू रिमेम्बर द शेप्स। एंड ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट तो हमको पता लग गया, ओ
से फिर साथ में ओ के आगे एक डंडी लगा दो, मतलब 10 हो जाएगा। 10 से 10.5 सेंटीमीटर का कोई सा भी रेंज दिया है वहां पे वो लिख देना है हमको। ओके, दैट इज ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट में टी है, ठीक है, टी लिखते हैं हम टी। तो टी के ऊपर वाली जो डंडी है उसको हम नीचे जब उतारेंगे तो कैसे हो जाएगा, वो 11 हो जाएगा। ओके, सो 11 सेंटीमीटर इज द ट्रू कॉन्जुगेट। देन 10 सेंटीमीटर या 10.5 सेंटीमीटर हमारा ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, एंड डायगोनल कॉन्जुगेट इज 12.5 सेंटीमीटर। दिस इज अबाउट द एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। अभी इसका ट्रांसवर्स और ऑब्लिक बाकी है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। अभी हमने सिर्फ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पढ़ा है, अभी ट्रांसवर्स और ऑब्लिक बाकी है इसके। ट्रांसवर्स आ गया। ट्रांसवर्स इज द लॉन्गेस्ट एनाटॉमिकल डायमीटर, सॉरी, ट्रांसवर्स डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट, ठीक है, यही पेल्विक आउटलेट में सबसे शॉर्ट हो जाता है। पेल्विक इनलेट का सबसे बड़ा डायमीटर है ये, पेल्विक आउटलेट का सबसे छोटा डायमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे छोटा डायमीटर है हमारा, सॉरी सबसे बड़ा डायमीटर है, दैट इज 13 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा, देखो 3 डायमीटर में ही खेलना है, 11, 12, 13, ठीक है। यहाँ पे भी ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट और जो आपका डायगोनल कॉन्जुगेट है ये इतना एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपका ट्रू कॉन्जुगेट इंपॉर्टेंट है। तो ट्रू कॉन्जुगेट हमारा 11 सेंटीमीटर है, ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो हमारा 13 सेंटीमीटर है, और ऑब्लिक जो है वो हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो 3 ही डायमीटर में खेलना है हमको, 11, 12, 13, 11, 12, 13, ओके, 13 ट्रांसफर्स है। अभी यही डायमीटर पेल्विक में भी यही रेंज है, पर क्या हो जाएगा, उल्टे हो जाएंगे। एनाटॉमिकल डायमीटर जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर सबसे छोटा हमारा इनलेट में था, वो सबसे बड़ा हमारा कैविटी में हो जाएगा, सॉरी आउटलेट में। तो आउटलेट में वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 13 वाला 11 हो जाएगा, 12 का 12 ही रहेगा, ठीक है। तो इंटरचेंज करना है हमको सिर्फ प्लेस। तो अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप पहले लिख लो, ठीक है, 11, 12, 13 और आउटलेट 13, 12, 11, ओके। तो 12 को 12 भी दे रहा है, सिर्फ वो दोनों चेंज हो रहे हैं। उसके बाद में आपको एनाटॉमिकल डायमीटर, सॉरी एंटीरियर पोस्टीरियर के अंदर ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिक और डायगोनल याद रखना है। मोस्टली नहीं पूछते डायगोनल और ऑब्स्टेट्रिक, क्योंकि ट्रू कॉन्जुगेट ही प्राइम सिग्निफिकेंस है, ओके। सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर नाउ द ट्रांसवर्स डायमीटर कहाँ पे है, that is the two farthest point of iliopectineal line। iliopectineal line जो है, जो iliopectineal eminence के बाद में आता है, sacroiliac joint के पहले आता है, वो दो जो farthest point है वहां पे होगा हमारा transverse diameter। और oblique diameter जो है हमारा, वो sacroiliac line joint से iliopectineal eminence पे जाता है। यहाँ आता है confusion। कहाँ आता है कंफ्यूजन, यहाँ पे इलियोपेक्टिनल लाइन आता है मैम के, यहाँ पे इलियोपेक्टिनल एमिनेंस आता है। ये होगा आपका कॉम्पिटिटिव के अंदर जब क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूजन, ठीक है। ओब्लिक डायमीटर में एमिनेंस आता है, ओके। डायगोनल डी के बाद ई आता है, यस। तो डायगोनल डायमीटर या तो फिर ओब्लिक डायमीटर के अंदर ई आएगा, दैट इज इलियोपेक्टिनल एमिनेंस आएगा। वेरएस ट्रांसवर्स डायमीटर के अंदर इलियोपेक्टिनल लाइन आएगा, इलियोपेक्टिनल एमिनेंस नहीं आएगा। आपको जब ऑप्शन देंगे दैट ओब्लिक डायमीटर स्टार्ट्स फ्रॉम सैक्रोइलियक जॉइंट टू डैश, इलियोपेक्टिनल एमिनेंस, पेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिनल लाइन, अब वहां आएगा कंफ्यूजन, और बच्चे वहां पे लिख के आते हैं इलियोपेक्टिनल लाइन, क्योंकि वो इलियोपेक्टिनल लाइन उन्होंने कहाँ पढ़ा होता है, ट्रांसवर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है डायगोनल कॉन्जुगेट, सॉरी डायगोनल डायमीटर, उसका दूसरा नाम है ओब्लिक डायमीटर, और उसके अंदर एमिनेंस आएगा, एमिनेंस आएगा, ठीक है। एंड दिस मेजर्स अबाउट 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम राइट सैक्रोइलियक या लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट से उसका अपोजिट, ठीक है, अपोजिट में जाना है। ये यहाँ पे, सॉरी just a second students, yes, ये इधर से चालू होगा ये, और इसके अपोजिट पे जाएगा इलियोपेक्टिनल एमिनेंस। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है उपसावा स्ट्रक्चर, ये यूं, दिस इज द डायगोनल या तो फिर ओब्लिक डायमीटर, ट्रांसफर्स यूं जाएगा इलियोपेक्टिनल लाइन में, ठीक है, पीछे। तो ट्रांसफर्स डायमीटर इसके पीछे है, और ओब्लिक जो है वो सैक्रोइलियक जॉइंट से, ये जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है थोड़ा सा, उसके ऊपर जाएगा, दैट इज आवर एमिनेंस। एलिवेटेड, ई से एलिवेशन, ई से एमिनेंस,
ठीक है, तो एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो है उसी के साथ में हमारा डी वाला स्ट्रक्चर दैट इज द डायगोनल डायमीटर जो है या फिर ओब्लिक डायमीटर है वो ऐसे जाएगा, ठीक है, सो दैट विल कम एट इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस वेयरएज इन ट्रांसफर्स इट इज इलियोपेक्टिनियल लाइन, ठीक है। Yes, now comes the diameter of outlet. Diameter of outlet के अंदर भी सेम है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, उसके अंदर भी दो पार्ट है, एनाटॉमिकल एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ऑब्स्टेट्रिक एंटीरियर पोस्टीरियर। यहाँ पे हम ऑब्स्टेट्रिक एंटीरियर पोस्टीरियर को कंसीडर करते हैं। नाउ इसके अंदर भी एक पार्ट कंफ्यूजिंग है, एनाटॉमिकल जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो 11 सेंटीमीटर है, वो हमारा उसमें भी 11 सेंटीमीटर है, दोनों में सेम है। एनाटॉमिकल हमारा कैविटी के अंदर भी 11 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भी 11 सेंटीमीटर है, बट कैविटी के अंदर हमारा जो कैविटी नहीं, इनलेट के अंदर हमारा जो ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट है वो 10 से 10.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, तो हमको यहाँ पे 13 सेंटीमीटर वाला कंसिडर करना है, ठीक है। सो 13 सेंटीमीटर जो है वो हमारा कंसिडरेशन होगा, दैट इज कंसिडर्ड एज ऑब्स्टेट्रिकल इंपॉर्टेंस इन केस ऑफ पेल्विक आउटलेट, और पेल्विक इनलेट के अंदर आपको एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट को कंसिडर करना है, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट को कंसिडर नहीं करना है। नाउ एनाटॉमिकल एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कहां से चालू हो रहा है, टिप ऑफ कॉक्सिक्स से लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस कॉमन है दोनों में, यहाँ पे टिप ऑफ कॉक्सिक्स है, टिप ऑफ कॉक्सिक्स, यहाँ पे टिप ऑफ सेक्रम, ये देखो अब आ गया यहाँ दिक्कत, to the lower border of symphysis pubis as the coccyx moves backwards during the second stage of labor। क्यों करना है यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिक को कंसीडर, क्योंकि जो कॉक्सिक्स है हमारा वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर कॉक्सिक्स इज द मूवेबल पार्ट एंड दैट विल मूव बैकवर्ड, ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो जाएगा वो, इसीलिए आपको ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट को कंसीडर करना है। और ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट जो है हमारा वो सेक्रम से चालू हो रहा है, कॉक्सिक्स से चालू नहीं हो रहा है, तो सेक्रम के पार्ट से चालू होके टिप ऑफ द सेक्रम से कहाँ जा रहा है वो लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। एनाटॉमिकल डायमीटर और एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट एंड ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट के अंदर लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस कॉमन है, एक में कॉक्सिक्स है, एक में सिम्फाइसिस प्यूबिस, एक में कॉक्सिक्स है, एक में सेक्रम है, ठीक है। तो कॉक्सिक्स कहाँ पे है, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट के साथ में कॉक्सिक्स है, ए से सबसे नजदीक सी है, ठीक है। सो एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट में क्या आएगा, कॉक्सिक्स, एंड ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट में आएगा आपका सेक्रम, ओके, विच इज 13 सेंटीमीटर। देन ट्रांसवर्स डायमीटर के अंदर भी दो है, बायट्यूबरस एंड बायस्पाइनस। बायट्यूबरस इज प्रेजेंट बिटवीन टू ischial tuberosity एंड दैट इज मेजरिंग अबाउट 11 सेंटीमीटर। ये देखो ये सबसे ज्यादा था पेल्विक इनलेट के अंदर और आउटलेट के अंदर सबसे कम है, ठीक है, 11 सेंटीमीटर। एंड बायस्पाइनस जो है वो टू ischial स्पाइन के बीच में है, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे मैम हमने पार्ट्स तो 3 डिस्कस किए हैं, दैट इज इनलेट, कैविटी, आउटलेट, लेकिन हमने डायमीटर तो सिर्फ 2 के ही पढ़े, इनलेट के और आउटलेट के, कैविटी का डायमीटर तो पढ़ा ही नहीं। यस, तो कैविटी का डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, कैविटी का डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड वहां पे उसके ये एनाटॉमिकल एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स ओब्लिक ऐसा सब नहीं है। क्यों नहीं है वहां पे, बिकॉज उधर एक तो सबसे पहले बहुत सारे जो लिगामेंट्स है, these are ligaments are interconnecting there, first reason. Second reason, there is no bony objection or there is no bony prominence there. तो pelvic cavity जो है हमारा उसके अंदर कोई भी bony elevation है ही नहीं, okay, so that is why जो diameter है pelvic cavity के वो आप कहीं से भी measure करो, that will always come as 12 सेंटीमीटर, okay। ये देखो ये जो नीचे वाली जो पार्ट है ना, ये नीचे, ये दिस इज द कैविटी और इसके नीचे दैट इज द कैविटी, दिस वन इज, ऊपर वाला पार्ट इज इनलेट और नीचे वाला पार्ट इज कैविटी, और एकदम नीचे वाला पार्ट जो पेल्विस को जब आप घुमाओगे तो जो पार्ट दिखेगा दैट इज कॉल्ड एज आउटलेट, ओके। तो ये जो नीचे वाला देखो यहाँ से जो सेक्रम के बीच में जो हॉलो ऑफ सेक्रम दिख रहा है ना, जो होल्स दिख रहे हैं उसके नीचे से चालू होता है आपका कैविटी। तो कैविटी के अंदर जब आप देखोगे पेल्विक स्ट्रक्चर को ऊपर से मॉडल को, तब पता लगेगी कि वहाँ पे कोई भी बोनी एलिवेशन है ही नहीं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे लिगामेंट्स भी जॉइंट हो रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट द पेल्विक कैविटी का जो डायमीटर है दैट इज 12 सेंटीमीटर। अगर आपको क्वेश्चन आता है द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विक कैविटी,
नॉट इनलेट, नॉट आउटलेट, नॉट कैविटी, सॉरी नॉट इनलेट, नॉट आउटलेट, कोई एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, खाली ऐसे पूछ लिया है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विक कैविटी इज डैश। तो कंफ्यूज होकर 13 सेंटीमीटर या ऐसा कुछ मत लिख के आना, आंसर इज 12 सेंटीमीटर। ओके 12 सेंटीमीटर आंसर है। 12 एक ऐसा नंबर है जो हमारे पेल्विस के अंदर कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। डायगोनल कॉन्जुगेट आउटलेट का, डायगोनल सॉरी ऑब्स्टेट ओब्लिक डायमीटर इनलेट का, ओब्लिक डायमीटर आउटलेट का, दोनों के अंदर 12 सेंटीमीटर है, पेल्विक कैविटी के अंदर भी 12 सेंटीमीटर है। ओके अब दिस इज अबाउट द डायमीटर्स ऑफ फीमेल पेल्विस। ओके एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ इनलेट, anterior posterior diameter of outlet, transverse diameter of inlet, transverse diameter of outlet, oblique diameter of inlet and the diameter of cavity। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। pelvic cavity के ऊपर क्वेश्चन आता है, you make sure you are memorizing this and remembering this। okay so this much is for today। apart from this other topics we'll study in next lecture। okay so thank you so much students। okay you can leave students, thank you।